Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine at home. In our previous lecture we have studied about the nomenclature of aromatic hydrocarbons. Today we will study the nomenclature of alkanes. But before studying the nomenclature of alkanes, we will study about some groups which will be present as side chains or side groups on a parent hydrocarbon chain, and we have to write their names. So first we will study these groups. These are alkyl groups, and alkyl groups are represented by R, capital R. Now, what are alkyl groups? Alkyl groups are derived from alkanes by removing one hydrogen, and the remaining part is known as alkyl group. Now we have IUPAC names of some common alkyl groups and their formulas. First one is methyl. It's abbreviated as ME, and methyl group is derived from methane. If we remove one hydrogen from methane, it will give us methyl group. Next is ethyl. If we remove one hydrogen from ethane, we get ethyl group. Next is propyl group. If we remove one hydrogen from propane, it will give us propyl group. Now propyl group is of two types. It may be N-propyl and it may be isopropyl. N-propyl, when end carbon is with free valency, N stands for normal, so it's known as N-propyl. But when hydrogen is removed from central carbon atom and there are two methyl groups on both sides, then it's known as isopropyl or one methyl ethyl group, but generally we say it isopropyl group. Now next is butyl group. Butyl group may also be of different types. First one is N-butyl. When end carbon is with free valency, that is hydrogen is removed from first carbon, then this is known as N-butyl group. Second one is when hydrogen is removed from first carbon, but on the rest of carbons are not present in chain, but here is isopropyl group at the end, then this is known as isobutyl group. Now next we have methylene group, CH2 with double bond, this is known as methylene group. Next CH2 double bond CH with free valency, its common name is vinyl group or ethynyl group. Next 3 carbon chain with free valency and with one double bond attached with free valency carbon atom, this is known as propionyl group. And if free valency and opposite side of double bond on this side, it's known as allyl group or propene 2 enyl group. Now next we have this one group, CH2 double bond C with methyl group and one carbon with free valency. So its free valency is on central carbon atom, it's isopropyl group, but in this case here is double bond between carbon and carbon, so it's known as isopropenyl group. And the last one is derived from ethine, so it's known as ethynyl group. Now we will feel some easy in writing the side chain groups. सेकेंडरी ब्यूटाइल, अच्छा ब्यूटाइल में एक और टाइप भी हो सकती है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. व्हेन सेकंड कार्बन इज विद फ्री वैलेंसी देन इट्स नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. And when we have central carbon with free valency and we have 3 methyl groups attached with it, it's known as tertiary butyl group. Carbon whenever attached with 3 carbons, it's known as tertiary carbon, so it's known as tertiary butyl group. Now next we have pentane, 5 carbons with free valency at end carbon, it's known as pentyl group and its common name is amyl group. Next, pentyl group may be of different types. If end carbon is with free valency, it's pentyl group. If end carbon is with free valency but on the other end there is isopropyl group, it's isopropyl group, then it's known as isopentyl group and may also be said isoamyl group. Now next
group is known as if carbon is end carbon who is with free valency, but here butyl group, tertiary butyl group is present on the end, then it's known as neopentyl group, और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग भी हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ग्रुप। नाउ फिनाइल ग्रुप आप पहले ही पढ़ चुके हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग में। C6H5 इज नोन एज फिनाइल ग्रुप। C6H5 with CH2 group having free valency is known as benzyl group, and benzene with methyl group is known as toluene, and if it has one free valency it's known as toluyl group. Now next we have rules for naming the organic compounds. There are certain rules which we have to follow to name alkanes, and there are various steps for the naming of alkanes. Number one step is for unbranched alkanes. Unbranched means which are have only straight chain. Nomenclature is done by adding suffix "ane" to the stem name. एन फ्रॉम एल्केन, जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम होगा उसकी एंड पे हम ANE अटैच कर देंगे, एंड द स्टेम नेम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ कंपाउंड। स्टेम नेम मीन्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जितनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो उसका स्टेम नेम होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। 1 कार्बन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज मीथेन, 2 कार्बन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ईथेन, 3 carbon hydrocarbon is known as propane, 4 carbon is known as butane, 5 carbon is known as pentane, 6 carbon is known as hexane, 7 carbon is known as heptane, and 8 carbon compound is known as octane. 9 carbon compound is known as nonane, and 10 carbon compound is known as decane. I think up to decane all of you are already aware of these names, but we have 2 new names here. If 11 carbon hydrocarbon it's known as undecane, and if we have a 12 carbon hydrocarbon it's known as dodecane. ये तो थे पेरेंट चेन्स। अगर सिंपल स्ट्रेट चेन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम उनकी नेमिंग कर देंगे। बट नेक्स्ट इफ वी हैव ब्रांच चेन एल्केन्स, longest possible continuous chain or parent atoms is selected in first one। अगर हमारे पास ब्रांचिंग भी है तो सबसे पहले उस ब्रांचिंग में से हम longest carbon chain select करेंगे, और the compound is named as a derivative of alkane। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सिलेक्टेड चेन, की जो भी चेन हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट की है हम काउंट करेंगे उसमें टोटल कितने कार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन्स हैं तो वो पेंटेन होगी, 6 हैं तो हेक्सेन होगी, 7 हैं तो हेप्टेन होगी। अब नेक्स्ट है हमने उस पर नंबरिंग करनी है ग्रुप्स के लिए, जो भी ग्रुप्स उस पर अटैच्ड हैं उसके लिए हमने नंबरिंग करनी है। So numbering is done on the selected chain from the end, which gives the carbon atoms carrying the alkyl group. For numbering we use Arabic numerals 1, 2, 3 and so on. यानी नंबरिंग हमने उस साइड से स्टार्ट करनी है कि जहाँ पर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, और नंबरिंग के लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे, डिजिट्स यूज करेंगे 1, 2, 3। Now the position of the alkyl groups on the atom is assigned by the number given to the chain to which it's attached, and the number is written before the alkyl group। जो भी ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल मिथाइल है तो उस वो जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसका जो भी नंबर होगा हम वो नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम उस ग्रुप का नाम लिखेंगे। इन दिस सिस्टम एंटायर नेम इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। जो भी नाम है उसको हम सिंगल वर्ड के तौर पे लिखेंगे, और हाइफन इज यूज्ड बिटवीन नंबर एंड द वर्ड। अगर हमने 2 मिथाइल लिखना है तो 2 और मिथाइल के दरम्यान में हम हाइफन लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे बिटवीन 2 नंबर्स। अगर हमने कहीं 2 नंबर्स लिखने हैं जैसे 2 और 3 तो उन दोनों के दरम्यान में हम कॉमा लगाएंगे, और फिर इसके साथ साथ हम टर्म्स यूज कर सकते हैं एन, आइसो, न्यू एटसेट्रा, सेकेंडरी एंड सो ऑन। इसको हम यूज कर सकते हैं जहाँ कहीं बहुत एसेंशियल है, अदरवाइज हम सिंपल नेमिंग करेंगे। सिंपल जो भी ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है, उनके सिंपल नेम्स हम यूज करेंगे। और इसके लिए हम एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें ये पेरेंट चेन है 1, 2, 3, 4,
5 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन है और ये बच्चों थर्ड यहाँ पर इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। अब देखिए अगर हम इसकी राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 नंबर मिलेगा उस कार्बन को जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 2 3। इस कंपाउंड के केस में हम नंबरिंग राइट से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से वो कार्बन जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसको नंबर 3 मिल रहा है। अब हम 3 पोजीशन इंडिकेट करेंगे और उसके बाद हम ग्रुप का नाम लिखेंगे जो अटैच्ड है, वो क्या है, मिथाइल ग्रुप। और 3 और मिथाइल के दरमियान में हम हाइफन लगाएंगे। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 5, तो उसको हम एंड पे लिखेंगे पेंटेन। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल. In this example, we have a compound parent chain with 1 2 3 4 5 carbons. अब हमने देखना है कि हम इसकी नंबरिंग राइट से करेंगे या लेफ्ट से। हम दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं। अगर हम इसकी लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन जिस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसको 2 नंबर मिल रहा है, और अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो वो कार्बन जिस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसको नंबर 4 मिल रहा है। तो अब हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, मीन्स कि हम लेफ्ट से ही नंबरिंग करेंगे और फिर हम इसका नाम लिखेंगे। इट विल बी 2 मिथाइल पेंटेन। 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है और पेरेंट चेन में 5 कार्बन हैं, सो इट विल बी 2 मिथाइल पेंटेन. इट कांट बी रिटन एज 4 मिथाइल पेंटेन बिकॉज 4 विल बी रॉन्ग. हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि अल्काइल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. इन नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव 1 2 3 4 5 6. अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो इसमें 6 कार्बन हैं, बट अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस साइड पे भी जा सकते हैं तो ये 7 कार्बन एटम्स हैं. हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो वो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इस अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन है, लेकिन अगर इस तरफ जाते हैं तो 7 कार्बन है. तो 7 कार्बन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. अब नेक्स्ट हमने नंबरिंग करनी है. इसकी नंबरिंग भी हम राइट से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी. लेफ्ट से करेंगे तो वो कार्बन जिस पे ग्रुप प्रेजेंट है उसको नंबर 4 मिल रहा है. इस तरह अगर हम यहाँ से भी करेंगे 1 2 3 तो इसको नंबर 4 ही मिलेगा, इसलिए हम इसकी नंबरिंग दोनों तरफ से ही कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम इसका नाम लिखेंगे. इट विल बी 4 और ये ग्रुप क्या है, इथाइल. 2 कार्बन एल्काइल ग्रुप इज नोन एज इथाइल, सो इट्स 4 इथाइल हेप्टेन. इसको हम 3 प्रोपाइल हेक्सेन नहीं लिख सकते, यानी इस चेन को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट है. हम ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 7 कार्बन है और यही लॉन्गेस्ट है, इसलिए इसका प्रॉपर नेम होगा 4 इथाइल पेंटेन. Now next, if different alkyl groups are present in the compound, if different alkyl groups means एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो फिर हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का मीनिंग ये है कि मिथाइल बाद में आएगा और इथाइल पहले आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन कार्बन चेन. कि कार्बन चेन पे बेशक मिथाइल पहले आ रहा है, लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसको. इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे. अब हम ये एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में हमारे पास पेरेंट चेन है 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5. इसमें इस पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है और इस पोजीशन पे इथाइल. अब अगर हम इसकी नंबरिंग राइट से स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो पहला ग्रुप जहाँ पे मौजूद है उसको नंबर 3 मिलेगा और नेक्स्ट को नंबर 4. लेकिन अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जो पहला ही ग्रुप प्रेजेंट है उसको नंबर 2 मिलेगा और सेकंड ग्रुप को नंबर 3. तो हम लेफ्ट से इसकी नंबरिंग करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं. अब इसमें 2 पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है और 3 पोजीशन पे इथाइल, लेकिन हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए इथाइल पहले आएगा. हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 और इथाइल के दरमियान में हाइफन लगाएंगे, और 2 मिथाइल. इथाइल को पहले लिखना है और मिथाइल को बाद में. और फिर ये क्या है, पेंटेन. जो लास्ट हम ग्रुप लिखेंगे उसको पेरेंट चेन के साथ एज अ वन वर्ड लिखेंगे. हम इसको लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. हम इसको 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. Now next, when 2 or more similar alkyl groups are present, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रेजेंट है लेकिन वो एक से ज्यादा मरतबा प्रेजेंट है, तो अगर वो 2 टाइम्स प्रेजेंट होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे डाई, और अगर 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम वर्ड यूज करेंगे ट्राई,
और अगर 4 टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो टेट्रा, और उसके साथ साथ हम वो नंबर्स लिखेंगे, कार्बन एटम्स के नंबर्स लिखेंगे जहां पर वो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उस जितनी मरतबा प्रेजेंट होगा वो हम साथ टर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें भी हमारे पास पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, और इसमें 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसको लिखेंगे 2 3, दोनों पोजीशंस को लिखेंगे और दोनों डिजिट्स के दरम्यान में कोमा लगाएंगे, उसके बाद हाइफन, और फिर 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है तो हम टर्म यूज करेंगे डाई, डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। यानी अगर सिमिलर ग्रुप एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो हम उसके लिए टर्म डाई, ट्राई या फिर टेट्रा यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें पेरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग हमने इसमें लेफ्ट से स्टार्ट किया क्योंकि लेफ्ट से करेंगे तो सेकंड पे ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड पे भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर राइट से करेंगे तो सेकंड पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पे पहला ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है कि फर्स्ट अटैच्ड ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अब इसमें देखें 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल। तो हम ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और इसकी वजह से हम पहले इथाइल लिखेंगे, 4 इथाइल एंड 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, नॉट 2 3 डाई मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। इससे दोबारा उन्होंने बताया कि इथाइल को हमने पहले क्यों लिखा है, ड्यू टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रेफरेंस की वजह से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होने की वजह से हम इथाइल को ऑलवेज मिथाइल से पहले लिखेंगे। Now, when two different alkyl groups are present at an equal distance, यानी मिथाइल भी है और इथाइल भी है, राइट से नंबरिंग करें तो मिथाइल को 3 मिले और लेफ्ट से करेंगे तो इथाइल को 3 मिले, इन दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो फिर हम उस ग्रुप को प्रेफर करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कंपाउंड इन विच पेरेंट चेन इज ऑफ 6 कार्बन एटम्स। अब अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे इथाइल है और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे मिथाइल है, तो इस केस में हम इथाइल को प्रेफर करेंगे। ये उन्होंने रूल बता दिया कि इस केस में हमने इथाइल को प्रेफर करना, सो इट्स 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, नॉट 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि when more than 2 alkyl groups are present and branching occurs at an equal distance from either end, the numbering is done from the end which gives minimum possible number to all the substituents। यानी दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे पहला पहला ग्रुप तो सेम पोजीशन पे है, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट ग्रुप्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें पेरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स हैं, इसमें राइट से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल है और फिर 3 पे मिथाइल है, लेकिन सॉरी लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, लेकिन अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं, यानी पहला ग्रुप इस साइड से भी 2 पे है और इस साइड से भी 2 पे है। अब पहला तो दोनों में इक्वल हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, इस साइड से 3, लेफ्ट साइड से 3 पे भी ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन राइट साइड से 3 पे ग्रुप प्रेजेंट नहीं, तो हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे ताकि सारे ग्रुप्स को लोएस्ट नंबर मिले। तो लेफ्ट की नंबरिंग जो है वो करेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और फिर 5 पे मिथाइल है, सो इट्स 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, नॉट 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये नेम जो है ये राइट से नंबरिंग के बेस पे लिखा गया, तो ये करेक्ट नहीं है। When the substance is a branch chain alkyl group जो है वो प्रेजेंट है और उस वो भी फर्दर उसमें भी ब्रांचिंग है, द नंबरिंग ऑफ द ब्रांच सब्सटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द पेरेंट चेन। यानी हमारे पास एक पेरेंट चेन है और उसके ऊपर एक ग्रुप प्रेजेंट है और उस ग्रुप की भी आगे से ब्रांचिंग है, तो फिर हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगी। इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उस कार्बन से जो पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। नहीं, इसकी तो हम नंबरिंग कर लेंगे, लेफ्ट से करेंगे तो देखें ग्रुप किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 पे प्रेजेंट है। अगर हम राइट से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 पे प्रेजेंट है, मींस नंबरिंग इक्वल है, हम राइट से करें या लेफ्ट से करें। अब हमने इस ग्रुप का नाम लिखना है,
वैसे तो ये जो ग्रुप है इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कह सकते हैं, लेकिन रूल्स में उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि हमने आइसोनियो सेकेंडरी को अवॉइड करना है, उसके बगैर ही हमने नेमिंग करने की कोशिश करनी है। तो फिर इसके लिए इस चेन की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? उस कार्बन से जो पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, और नंबरिंग उस साइड पे करेंगे जिस साइड पे लॉन्ग चेन प्रेजेंट होगी। देखिए इस साइड पे एक कार्बन है, लेफ्ट पे ओनली 1 कार्बन है, बट राइट पे 2 कार्बन है, तो हम 1 2 3 इस साइड पे जाएंगे और इसको फिर हम एज अ ग्रुप ले लेंगे। अच्छा, अब देखिए 5 पोजीशन पे क्या अटैच्ड है। 5 पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच है वो है 1 मिथाइल प्रोपाइल, यानी ये प्रोपाइल ग्रुप है, और उसकी भी 1 पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल। अब ये साइड चेन का सब ग्रुप है, इसलिए हम इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अगर पेरेंट चेन पे ग्रुप होता तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये साइड चेन पे ग्रुप अटैच है, तो इस ब्रैकेट से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है ये साइड चेन पे प्रेजेंट है, यानी 1 मिथाइल किस पे प्रेजेंट है? प्रोपाइल पे। वो कौन सा प्रोपाइल है? जो साइड चेन है। तो दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये पूरा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? पोजीशन 5 पे। सो दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये सारे रूल्स आप रिवाइज करें और इसके अकॉर्डिंग एल्केन्स की नेमिंग करें। फर्दर एग्जांपल्स आप कर सकते हैं दोनों बुक से, फ्रॉम सनाउल्लाह चौधरीज बुक्स एंड फ्रॉम एम यूनस बुक, दोनों ग्रुप से एग्जांपल्स करें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।